Assalamualaikum class, hope so you will be fine. Here I am your instructor. Welcome to my channel Eminence Achiever. So today is our class about first year biology. The chapter name is Introduction. Let me start our class with the name of Allah. So first of all, I will discuss about biology and some major fields of specialization. The word biology is derived from two words, Latin words. Bio means life and logy means study. So, biology is the study of living things. We can say that it is the study of all living organisms that have complex structure, they have complex entities, living organism, highly organized, composed of one or more cells. Today we will discuss about many branches of biology. There are a lot of branches are available that we are working and enhancing our ability to understand the life. So as we studied that biology is the study of living things, it is the branch of science and like other sciences, it is the way of understanding nature. बायो एक ऐसी वे है जिससे हम नेचर को स्टडी करते हैं. जो बायोलॉजिस्ट होता है वो नेचर के बहुत ही करीब होता है, वो चीज़ों को इजीली अंडरस्टैंड करता है. ठीक है. बायोलॉजी डील्स विद द लिविंग पार्ट ऑफ नेचर. कि बायोलॉजी जो लिविंग पार्ट ऑफ द नेचर के साथ तो डील करती है, लेकिन उसके साथ विद द नॉन लिविंग थिंग्स विच इफेक्ट ऑन द लिविंग थिंग्स इन एनी वे. जो चीज़ें नॉन लिविंग थिंग विच आर नॉन लिविंग, वो जो इफ़ेक्ट करती हैं ऑन दी लिविंग थिंग्स, उनको भी स्टडी किया जाता है. दे स्ट्राइव टू अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन, इंटीग्रेट एंड डिस्क्राइब द नेचर वर्ल्ड ऑफ लिविंग थिंग्स. द लिटरल मीनिंग ऑफ बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ. So as I have discussed above, biology is the study of living things. Okay. Here a lot of explanation is here. We will read it. It is very difficult to define life, as we know that life is too complex. We have a lot of chemical reaction in our body, respiration, digestion, a lot of chemical reaction, metabolism, catabolism, anabolism. All chemical reactions are take place in our body all the time. We are using energy, we are consuming energy. They all are the examples of biology. There are certain aspects of life that lie beyond the scope of the life of biology. Like the answer of the question, a lot of questions are arising in the biologists that why should there be life? कि life क्यों है? There are the question not usually taken up by the biologist and are left to the philosopher. And बहुत से लोगों ने यहाँ पे जो बायोलॉजिस्ट हैं वो सोचते हैं कि ये लाइफ किस तरह से हमारे पास एग्जिस्टेंस में आई, उसके पास यहाँ पे मैटर से कैसे लाइफ जनरेट होना शुरू करे. क्योंकि साइंस हमें बहुत सी फिलोसफीज देते हैं. जो फिलोसफर हैं, ग्रीक फिलोसफर या लैटिन फिलोसफर हैं, वो हमें बहुत सी बातों के बारे में बताते हैं, लेकिन हमें नहीं पता उसके बारे में क्या चीज़ ठीक है क्या नहीं. हम जब रिसर्च करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, सो बाय द हेल्प ऑफ बायोलॉजी वी कैन अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, वी कैन अंडरस्टैंड द नेचर. सो लाइफ इज फॉर बायोलॉजिस्ट. व्हाट इज द लाइफ फॉर बायोलॉजिस्ट? इट इज़ अ की पॉइंट. इट कैन बी अ शॉर्ट क्वेश्चन. Life for biologist, so I will explain, is a set of characteristics that distinguish living organism from non-living objects. आप कह सकते हैं यहाँ पे कि वो characteristics हैं जो कि एक नॉन लिविंग थिंग को या लिविंग थिंग को नॉन लिविंग थिंग से अलग करती है, उसको डिस्टिंग्विश, उसको एक डिफरेंस देती है. वो चीज़ क्या है? लाइफ है. ठीक है. Living organisms are highly organized. As we know that we are very organized organism. Like we have proper mechanism for every working in our body. कॉम्प्लेक्स एंटिटीज़ वी हैव कॉम्प्लेक्स एंटिटीज़. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी
आइज़ को आप ले लेके किस तरह से अल्लाह ताला ने हमारी आइज़ को बनाया है, उनको लुब्रिकेट किया है, आइज़ को लुब्रिकेट करके, ताकि उसके अंदर अगर कोई चीज़ भी चली जाती है तो जो आइज़ के अंदर वाटर कुशन्स होते हैं वो हमें किस तरह से हमारी आइज़ को लुब्रिकेट करते हैं और आइज़ को फटने से बचाते हैं। अगर ये फ्रिक्शन होती रहती तो हमारी आइज़ तो कब की फट चुकी होती। समझ रहे हैं ना आप बात को। यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म आर हाईली कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स एंटिटीज आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। आपको पता है जब भी कोई सेल या ऑर्गेनिज्म हमारे पास एस्टेब्लिशमेंट में आता है तो वो वन और मोर सेल से मिलकर बना होता है। contain genetic program as we know that we all organism living organism having DNA or RNA, okay, can acquire and use energy. We can use energy, we can consume energy, can carry out and control numerous chemical reaction. मैंने आपको पहले भी बताया कि किस तरह के chemical reactions हमारी body के अंदर हो रहे होते हैं। digestion, metabolism, catabolism, ATP generation, a lot of reactions are taking place in our body. We can grow in size, हम अपने साइज में ग्रो कर सकते हैं। मेंटेन अ फेयर कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट, और एक इंटरनल इन्वायरमेंट के साथ अपनी बॉडी को फ्लक्चुएट करते हैं। किस तरह का टेम्परेचर बाहर है उस तरह के टेम्परेचर के साथ हम अपनी बॉडी को फ्लक्चुएट करते हैं। अब देखिए बाहर टेम्परेचर 42 डिग्री हो रहा है तो हमारी बॉडी उस टेम्परेचर पर नहीं जाती, हमारी बॉडी उस टेम्परेचर के लिहाज से अपने आप को फ्लक्चुएट कर लेती है और हम उस माहौल के अंदर कैपेबल होते हैं रहने के। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है कि फेयरली कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट पढ़ लिया, प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। अब यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की करैक्टरिस्टिक्स में एक बात ये भी आती है कि वो क्या कर सकते हैं, अपने ऑफस्प्रिंग्स को जनरेट कर सकते हैं या प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब नेक्स्ट जनरेशन को क्रिएट करना। अब यहाँ पे ऑफस्प्रिंग से हमने 9th क्लास में एक टर्म पढ़ी थी, स्पीशीज। व्हाट इज स्पीशीज? द स्पीशीज आर दैट ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड टू ईच अदर एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग लाइक देमसेल्फ। के स्पीशीज वो जानदार हैं जो हम लोग भी एक स्पीशीज कैटेगरीज में आते हैं ना। एक कोई ना कोई, चाहे हम लोग माउस ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग मंकीज की एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग ह्यूमन बींग्स की एग्जांपल ले लेते हैं, तो दे आर बिलोंगिंग टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्पीशीज। ओके, सो सिमिलर टू देम एंड अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्ड टू चेंज इन देयर इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट के चेंज में रिस्पॉन्ड भी करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। उसके बाद हम नीचे जाते हैं, ये दो जो पैराग्राफ्स हैं उसको भी पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट प्रोसेसिंग ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक्स साइमल्टेनियसली कैन बी डिक्लेयर्ड एज अ लिव। और यहाँ पे वो बायोलॉजिस्ट जो है वो बता रहे हैं कि जो ऑर्गेनिज्म हैविंग द ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अबव मेंशन दे कैन बी अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। के लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो चीज़ें आएंगी जो उन्होंने ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी हैं, वो क्या चीज़ें हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आएंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसको आप रीड कर लीजिएगा बुक से। नेचुरल प्रोसेसेस के अंदर मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ इस पैराग्राफ के अंदर कि किस तरह से जो हम स्टडी करते हैं बायोलॉजी की, और किस जो चीज़ें हमें या ब्रांचेज हमारे पास आती हैं उनको स्टडी करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे यू आर श्योरली फेमिलियर एट दिस स्टेज। अब वो कह रहे हैं कि आप फर्स्ट ईयर क्लास के अंदर आ चुके हैं, तो आपने 9th क्लास के अंदर या पिछली क्लासेस के अंदर इन टर्म्स को पढ़ा होगा। तो यहाँ पे इकोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। अब इकोलॉजी आपको पता क्या होती है? इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। वो क्या होती है हमारे पास? इकोलॉजी। अब एम्ब्रियोलॉजी का हमें पता है, एम्ब्रियोलॉजी आपने वर्ड से ही यहाँ से पहचाना है। एम्ब्रियोलॉजी एम्ब्रियो से निकला है, लॉजी, और इस तरह से किस तरह से प्लेसेंटा से एम्ब्रियो बनना है, नेक्स्ट उसकी किस तरह से उसने नेक्स्ट कैटेगराइज होना है, मतलब किस शेप में जाना है, तो वो एम्ब्रियोलॉजी की जो स्टडी है। और नेक्स्ट एक पूरा जानदार या ऑर्गेनिज्म बनना है, उसमें उस चीज़ की जो स्टडी होती है उसको एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद फिजियोलॉजी की कोई चीज़ फिजिकली किस तरह से नज़र आती है उसको स्टडी करना, वो क्या होती है?
फिजियोलॉजी। मॉर्फ मीन होता ही शक्ल है, मॉर्फ और लॉजी मीन स्टडी है, मॉर्फोलॉजी। तो इसको भी मॉर्फोबायोलॉजी ये क्या होती है कि जो शक्ल को जो स्टडी करना, ठीक है। आप सब कुछ स्टूडेंट अभी उर्दू से डायरेक्ट इंग्लिश में आए होंगे, वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि उनको डिफ़िकल्टी होती है इन चीज़ों को समझने के लिए, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रही हूँ कि उर्दू में आपको बताऊँ। उसके बाद यहाँ पे हिस्टोलॉजी क्या है, हिस्टोलॉजी हिस्टा का जो वर्ड है वो टिश्यू से निकला है, तो हिस्टोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ टिश्यूज़, ओके। एवोल्यूशन, बेसिकली जो एवोल्यूशन होती है वो किसी जानदार के जो ऊपर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं या जेनेटिकली फैक्टर्स आते हैं, वो आने के बाद जो इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन दोनों रिलेट करते हैं, इकोलॉजी के बाद एवोल्यूशन आती है और चीज़ों में चेंजेस आने के बाद वो एक न्यू जनरेशन की तरफ चली जाती है। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगी कि जैसे साइंटिस्ट कहते थे कि पहले जो मंकीज़ होते थे वो उन्होंने एवोल्यूशन शुरू की, अपनी पूंछ को कम मतलब टेल को कम यूज़ करना शुरू किया, तो देन वो अपने हैंड्स को और जो है उनको जिन चीज़ों को उन्होंने कम यूज़ करना शुरू कर दिया वो नेक्स्ट जनरेशन में उनके गायब होना शुरू होगी और दैट्स लीड टू अ न्यू एवोल्यूशन, ओके। अब जेनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ जेनेटिक्स, आपको पता है द स्टडी ऑफ DNA, RNA और जेनेटिक मटीरियल है एंड देयर ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट जनरेशन इज़ कॉल्ड जेनेटिक्स। जियोग्राफी क्या है, जियोग्राफी क्या होती है कि जानदारों की स्टडी ऑन द अर्थ, उसको क्या कहेंगे हम, जियोग्राफी। These are branches of biology which deal with the environmental relation developments, fluctuation, structures, form and internal cross structure, fossil fuel, tissue, ancestral history, heredity, distribution। अब ये जो सारी की सारी ब्रांचेस हैं ये हमें किन किन चीज़ों के बारे में, टिश्यूज़, एंसेस्ट्रल हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। इन जेनेटिक्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम फाइलोजेनेटिक ट्री बना सकते हैं। नेक्स्ट जनरेशन के बारे में हमें पता चलता है कि आया पिछली जनरेशन के अंदर क्या क्या वेरिएशंस हुई थी, तो नेक्स्ट जनरेशन हमारे पास आई है। उसके बाद इसकी काफ़ी सारी एग्जांपल उन्होंने दिए हैं ब्रांचेस की, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मेराइन बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, फ्रेश वाटर बायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, सोशल biology and biotechnology, etc. There are a lot of branches that are available for a biologist. We can study here. You will definitely understand these terms. I hope so. अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या चीज़ होती है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म, सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेली एट मॉलिक्यूलर लेवल। अब यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ये जब हम पढ़ेंगे तो इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे कि जब एक एटम हमारे पास वजूद में आता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन, अ लॉट ऑफ जो चीज़ें हमारे पास पाई जाती हैं, ठीक है, आइडेंटिटीज़ कह सकते हैं, तो पाई जाती है। तो उसको हम जब मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करते हैं, इन चीज़ों को, सेल को मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करते हैं, उसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। ऑर्गेनिज्म को मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करेंगे तो उसको क्या कहेंगे हम, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आ जाती है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी क्या होती है, अब इसको हम स्टडी करते हैं। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट। दिस इंक्लूड इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट, स्पेशली एज इट रिलेट्स टू ह्यूमन एक्टिविटीज। अब यहाँ पे इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, अब देखिए हर चीज़ को आपने इसके नेम से लिंक करना है। बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, चीज़ों को मिक्सअप करके मिंगल कर देते हैं और जो डेफिनेशंस होती हैं वो आगे पीछे रख देते हैं, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है।
इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्या होता है कि ये ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी होती है उसका जो रिलेशन होता है विद देयर इन्वायरमेंट। लेट्स सपोज मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ कि हम लोग बाहर जाते हैं, धूप होती है और धूप सन इज़ अ पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट। उसका जो इंट्रैक्शन होता है विद आवर बॉडी या इन्वायरमेंट या ऑर्गेनिज्म के साथ जो उसका रिलेशन होगा उसको हम क्या कहेंगे, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। तो इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लिविंग थिंग। सो इधर हम क्या करेंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको स्टडी करेंगे, लाइक वायरसेस, प्रोटोजोआ, माइक्रोस्कोपिक एल्गी एंड फंजाई। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास टर्म फ्रेश वाटर बायोलॉजी। दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद ऑर्गेनिज्म लिविंग इन फ्रेश वाटर बॉडीज लाइक। अब इधर यहाँ पे फ्रेश वाटर स्मॉल लेवल पर इधर बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो लिविंग वाटर बॉडीज रह रही हैं उनको हम स्टडी करेंगे, दैट्स कॉल्ड फ्रेश वाटर बायोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैरीन बायोलॉजी। दिस इज द स्टडी ऑफ लिविंग सीज, ओशन, दिस इंक्लूड द स्टडी ऑफ मेराइन लाइफ। अब यहाँ पे जो मेराइन लाइफ के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको स्टडी करेंगे, सी एक्टिंग एज फैक्टर फॉर मेराइन लाइफ के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको स्टडी किया जाएगा, ठीक है। पैरासाइटोलॉजी, दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट। पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो होस्ट से अपना जो है, लेट्स सपोज हम यहाँ पे मॉस्किटोज की एग्जांपल लेते हैं कि वो हमें बाइट करते हैं और बदले में हमें क्या करते हैं, हार्म भी पहुँचाते हैं, तो उनको हम कहते हैं पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट्स कहते हैं तो उसकी जो स्टडी होगी पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन के किस तरह से वो अपना स्लाइवा है या जो मॉस्किटोज हैं अपना जब इंजेक्ट करते हैं इंजेक्शन, तो किस तरह से वो अपने स्लाइवा को हमारे सेल्स के अंदर सिक्रीट करते हैं। जब आपने देखा है जब मच्छर आपको इंजेक्ट कर जाता है तो कुछ देर तक बाद तक भी हमें वहाँ पे रेडनेस और उसके काटने के बाद वो फील होती है जलन। तो उससे क्या होता है, वो स्लाइवा जब तक हमारे सेल्स के अंदर मिक्सअप नहीं होता तब तक वो ठीक नहीं होता, ठीक है। और ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कि किस तरह से वो ट्रांसमिट करता है अपने थिंग्स को हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। पैरासाइटोलॉजी इसको कहते हैं। लाइफ हिस्ट्री कि कितनी देर तक किसी जानदार ने जिंदा रहना है, और एंड होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप हम देखते हैं कि ये म्यूचुअलिस्टिक है, सिम्बियोटिक है, कि किस तरह से ये रिलेशन रखता है, ऑल द टाइम जो है कनेक्ट रहता है विद द होस्ट, और कभी कभी ही ये कनेक्ट होते हैं। तो इसकी जो स्टडी होगी उसको हम पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास ह्यूमन बायोलॉजी आते हैं। ये क्या चीज़ है, इट इज़ स्टडी ऑफ द मैन, ठीक है। ह्यूमन बायोलॉजी, मैन के अंदर वुमेन एंड मैन दोनों आ जाएंगे, गर्ल्स एंड बॉयज़ एंड जितने भी हैं, ठीक है, वो आ जाएंगे। इसके अंदर हम इसकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे, हिस्टोलॉजी देखेंगे, फंक्शन को देखेंगे, स्टडी करेंगे, एवोल्यूशन को देखेंगे, जेनेटिक्स देखेंगे कि इसके अंदर ये डीएनए है, आरएनए इसके अंदर है, एनाटॉमी किस तरह की है, इसकी हिस्टोलॉजी क्या है, टिश्यूज किस चीज़ के बने हुए हैं, उन चीज़ों को हम स्टडी करेंगे, तो उसको हम ह्यूमन बायोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पे सोशल बायोलॉजी, दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल एंड बिहेवियर कम्युनल लाइफ ऑफ ह्यूमन। अब सोशल है, अब यहाँ पे ह्यूमन्स का जो बिहेवियर होगा उसको स्टडी किया जाता है सोशल बायोलॉजी में, ठीक है। अब यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी आ गई है। बायोटेक्नोलॉजी इज़ माई ऑन फील्ड। It deals with the use of living organism system or processing, manufacturing and services of industries. अब बायोटेक्नोलॉजी का क्या काम होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके फॉर द बेनिफिशियल ऑफ पीपल काम किया जाता है, उनको सर्विसेज जो है प्रोवाइड की जाती हैं, उसको बायोटेक्नोलॉजीज कहा जाता है। अब जैसे अब हम करंट सिचुएशन कोविड-19 को लेते हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट पेइंग अ इम्पोर्टेंट रोल इन दिस टू मेक वैक्सीन्स। ओके, आई होप सो यू ऑल विल fine by the grace of Allah. So we will meet in your next lecture, which is levels of biological organization. For your question, please add a comment in our video. Thank you. Allah Hafiz. Please subscribe my channel.